स्क्रीन दिख रहा है? Is screen visible, Dipali? Okay, now I am going to share this presentation. Okay, so this is the presentation and this is the slide, title slide. Okay, title slide is clear, right? Voice is okay? Okay, so you can switch off your mic. I am going to start the lecture. Okay, so we have finished the unit number 1. That unit number 1 is related to the introduction of crystallography and related parameters. Okay, now in second unit we will study you will study diffraction, Bragg's law and some diffraction techniques. Okay, so this is our lecture number 1, unit number 2, solid state physics. ओके, यहाँ डेट की गड़बड़ी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, टुडेज डेट इज 4th August, ओके 2021. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज डिफ्रैक्शन. ओके, एंड you might have studied the X-rays. Okay, X-rays in BSc. What are X-rays? X-rays are nothing but the electromagnetic radiations. Okay, X-rays are nothing but the electromagnetic radiation having wavelength 0.1 to 100 Angstrom. ये तुमने पढ़ा होगा कि एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में आती है. और एक्सरेज का जो है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है 0.1 to 100 Angstrom होती है. ओके, सेकेंड थिंग इज एक्सरेज possess certain properties and one of the property of X-rays is diffraction. So X-rays give diffraction. Okay, so you might have gone through the term diffraction, reflection, refraction, transmission, all that are related to the light. And light is what? Light is electromagnetic radiation. So X-ray is also electromagnetic radiation. If you see the electromagnetic spectrum, वहाँ पे क्या होता है electromagnetic spectrum में? ठीक है, गैमा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल है, यूवी है, विजिबल है, ठीक है, माइक्रोवेव्स है. तो सारा का सारे जो वेव्स के वेवलेंथ के अनुसार जो स्पेक्ट्रम को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट मीन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑल रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो वहाँ एक्सरे भी होता है. तो एक्सरेज आर जस्ट लाइक अ लाइट. लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. तो एक्सरे भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. Okay, so X-rays are nothing but the electromagnetic radiations having wavelength 0.1 to 100 Angstrom. Okay, you have to remember the wavelength of X-ray is ranging from 0.1 to 100 Angstrom. If we see the types of X-ray, there are two types of X-ray, generally soft X-rays and hard X-ray. Soft X-rays मतलब एनर्जी कम, हार्ड X-rays मतलब एनर्जी ज़्यादा. जिस X-rays की एनर्जी ज़्यादा उसको बोलेंगे हार्ड एक्सरे. जिस एक्सरेज की एनर्जी कम उसको बोलेंगे सॉफ्ट एक्सरे. एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम. E इज इक्वल टू hc/λ, पता होगा तुमको, यूनिवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ. सो एक्सरे का तो एक वेवलेंथ रेंज होती है 0.1 to 100 Angstrom. 100 Angstrom मतलब ज्यादा वेवलेंथ, 0.1 Angstrom मतलब कम वेवलेंथ. तो 0.1 Angstrom वाले क्या रहेंगे? हार्ड एक्सरे. 100 Angstrom वाले क्या रहेंगे? सॉफ्ट एक्सरे. समझ में आया? 100 Angstrom मतलब ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी. 0.1 Angstrom मतलब कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी. सो कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज को क्या बोलेंगे? हार्ड एक्सरेज. ज्यादा वेवलेंथ और कम एनर्जी वाले एक्सरेज को बोलेंगे सॉफ्ट एक्सरेज. ठीक है, तो ये एक्सरे के टाइप्स में मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा, एक्सरेज भी डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि एक्सरेज ऑलरेडी है क्या और एक्सरेज के टाइप्स क्या होते हैं. ओके, सो एक्सरेज हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टीज. अमॉन्ग द प्रॉपर्टीज द डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो एक्सरेज शोज डिफ्रैक्शन. So first of all we have to study what is diffraction. Okay, you might have studied the diffraction phenomena in lower classes, but I am again recalling it, what is diffraction. Okay, so simple definition of diffraction is what? The phenomena of bending or spreading of waves around the edge of the obstacle or aperture called diffraction. Means if suppose the deviation in the waves or deviation in the beams either in the form of bending or in the form of spreading. तो वेव और वेव क्या हो रहा है? ऑब्स्टेकल, बीच में ऑब्स्टेकल रखा. ऑब्स्टेकल मतलब तुम्हारा सामने डिफिकल्टी रख दिया. अगर मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो और सामने से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक विल एक्ट एज अ ऑब्स्टेकल. तो तुम अपना रास्ता बदल लोगे. ठीक है, तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया. ओके, तुम क्या हो गए? बेंड हो गए. तुम क्या हो गए? स्प्रेड हो गए. अपना डायरेक्शन बदल लिया तुमने.
बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल यू हैव चेंज्ड योर डायरेक्शन। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया? डिफ्रैक्शन हो गया या तुम्हारी स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे ये तो भाई डिफ्रैक्शन है कि स्कैटरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तुम ऊपर की तरफ देखते हो, आसमान नीला नजर आता है। ठीक है, सो व्हाई स्काई इज ब्लू? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। ओके, कैसे स्कैटरिंग होती है? स्काई में क्या है? गैसियस पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसियस पार्टिकल्स है। एयर में क्या है? मॉइस्चर भी है। उस पर जब सन की लाइट पड़ती है तो उन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड होती है, तो उसको स्कैटरिंग बोलेंगे। लाइट का पाथ चेंज होता है और फिर लाइट स्प्रेड होती है तो कलर दिखता है। ब्लू कलर क्यों दिखता है? ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है इसलिए ब्लू कलर दिखता है स्काई का। ब्लू लाइट किसकी? सनलाइट में। सनलाइट में सारे कलर्स होते हैं बिकॉज सनलाइट इज व्हाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ होल कलर्स। लेकिन सिर्फ ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई का? ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है मोर। ओके, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होता है। अब ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड क्यों होता है? वेवलेंथ क्या है ब्लू की? कम वेवलेंथ है तो ज्यादा स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां पे उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू स्काई दिखता है। ओके, अब वहां पे भी तो लाइट का पाथ चेंज हो रहा है ना। वहां पे भी जब लाइट गैस के मॉलिक्यूल्स पे पड़ रही है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टू द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द एयर, ओके, the deviation in the path of light takes place. So why we are not calling that diffraction? उसको क्यों नहीं डिफ्रैक्शन बोलते? वहां पे भी तो लाइट बेंड हो रही है, वहां पे भी तो लाइट स्प्रेड हो रही है। So you have to remember the difference between diffraction and scattering. Scattering is also the change in the path of light. Okay, deviation in the path of light. Diffraction is also change in the path of light or bending or spreading of light, deviation in the path of light waves. But what is the difference between scattering and diffraction? The major difference between scattering and diffraction is this line. The size of obstacle or aperture should be of the order of wavelength. अगर ऑब्स्टेकल का साइज या अपर्चर का साइज वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है, वेवलेंथ के ऑर्डर में है, अगर वेवलेंथ है एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर में, तो ऑब्स्टेकल का साइज भी एमस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज नॉट इक्वल टू द वेवलेंथ और साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, सो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। उसको डिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। सो डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग में फिनोमिना सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है? ये द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और साइज ऑफ द अपर्चर शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये किस में? डिफ्रैक्शन में इक्वल होगा, स्कैटरिंग में इक्वल नहीं होगा। इक्वल होता है तो डिफ्रैक्शन, इक्वल नहीं होता तो स्कैटरिंग। ओके, तो होता कैसे? पिक्टोरियली कैसे इमेजिन करेंगे या पिक्टोरियली कैसे हम बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन होता है या नहीं होता है? ठीक है, so the phenomena, so simple definition is the phenomena of bending or spreading of waves around the edge of the obstacle. obstacle के अराउंड में या तो वेव बेंड हो रही है या वेव स्प्रेड हो रही है, called diffraction. But the important condition of diffraction is this: the size of obstacle or aperture should be of the order of the wavelength. wavelength के ऑर्डर का होना चाहिए साइज और ऑब्स्टेकल, तब डिफ्रैक्शन है। ऑर्डर वेवलेंथ के ऑर्डर का नहीं है। मतलब साइज का मान लो ऑब्स्टेकल का साइज 1 एंगस्ट्रॉन्ग है तो वेवलेंथ 1 मीटर की नहीं होनी चाहिए। कितना डिफरेंस है साइज में? बहुत ज्यादा। अगर मान लो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल 1 एंगस्ट्रॉन्ग है और वेवलेंथ भी 0.8 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसका ऑर्डर सेम है, ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर के वेवलेंथ है, तो उसको डिफ्रैक्शन बोलेंगे। द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर शुड बी, अब ऑब्स्टेकल किसको बोलेंगे और अपर्चर किसको बोलेंगे बताऊंगा। ये देखो डायग्राम, देखो एनिमेशन, दिस इज ग्रेटिंग और दिस इज ऑब्स्टेकल। okay, this is also called obstacle. When the light incident on this grating or obstacle, the path of light will change. So this is incident light and this is diffracted light. Okay, this is incident light and this is diffracted. But when we call this phenomena is diffraction, thus this width of the obstacle or the size of the obstacle should be in the order of wavelength of light. If suppose यहाँ पे एक्सरे है और एक्सरे की वेवलेंथ 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑब्स्टेकल की विड्थ भी उस वेवलेंथ के रेंज में ही होनी चाहिए, द विड्थ ऑफ द ऑब्स्टेकल।
or the size of the grating should be equal to or should be in the order of the wavelength of incident light, then this phenomena is called diffraction. Otherwise we will call it as scattering. Otherwise scattering बोलेंगे. तो ये हो गया ऑब्स्टेकल. अपर्चर किसको बोलते हैं? अपर्चर मीन स्मॉल ओपनिंग. Small opening is called aperture. If suppose this is slit and this is small opening, that is called aperture. If suppose this is the incident light just striking at the slit or opening through the slit, then after going through the opening, this incident light waves will spread. Okay, so after going through the opening, these incident light waves, okay, will spread. So this spreading of waves is also called diffraction, but here the condition is that the size of the opening should be equal to or should be in the order of wavelength of incident light. ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है. Size of the opening means size of the aperture should be equal to the wavelength of incident light, and here the size of the obstacle should be equal or in the order of wavelength of incident light. अगर ऐसा होता है तो diffraction, otherwise scattering. क्लियर? तो अभी मुझे ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं है कि diffraction होता क्या है और diffraction और scattering में difference क्या है. ठीक है? So this is called diffraction. Okay, and there are lot of types of diffraction. There are main two types of diffraction, Fraunhofer diffraction, Fresnel diffraction. ये सब पढ़े होंगे, उसकी हमको जरूरत नहीं है. अभी पढ़ना है तो गूगल पे सर्च कर लेना, उसका भी टाइप्स तुमको डिफ्रैक्शन के पता चल जाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. ओके, सो ये तो हो गया डिफ्रैक्शन. अब ये तो डिफ्रैक्शन के बारे में बताया. ओके, आई टॉट यू द डिफ्रैक्शन इन सिंपल वे, बट now we will go towards the X-rays. Okay, so X-rays are electromagnetic waves. Okay, and X-rays gives diffraction. So अगर हमको टेस्ट करनी है X-rays diffraction देता है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे X-ray diffraction देता है कि नहीं? अब हम X-ray को क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे एटम्स के ऊपर. अब एटम्स के ऊपर जब X-rays को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, एटम्स किसके? क्रिस्टल्स के. Suppose crystalline solids means crystal. In crystals, atoms are arranged in a regular manner. I already told you in the introduction lecture of unit number 1. Crystalline solids are made up of regular arrangement of atoms or regular arrangement of molecules or ions. उसको बोलेंगे crystalline solids. अगर टेस्ट करना है एक्सरेज डिफ्रैक्ट होते हैं कि नहीं, तो एक्सरेज को क्या करो? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर इंसिडेंट करो, तो एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी. अब एक्सरे डिफ्रैक्ट क्यों होगी? What is the main reason of diffraction of X-rays by crystals? Because in crystals, the interatomic spacing or the interplanar spacing, जैसे क्रिस्टल में एक प्लेन है उस पर एटम्स अरेंज है, या दूसरा प्लेन है उस पर एटम्स अरेंज है, तीसरा प्लेन से एटम्स अरेंज है. तो क्रिस्टल्स में क्या होता है? The spacing between two planes or the spacing between two atoms or two interplanes, okay, the spacing between the planes of atoms or spacing between the atoms, it is in the order of wavelength of X-ray. तो जो स्पेसिंग होती है एटॉमिक प्लेन्स की क्रिस्टल के अंदर, वो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के ऑर्डर में होती है. दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ. दैट्स व्हाई द एक्सरेज गिव डिफ्रैक्शन. इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन देते हैं. अगर प्लेन के बीच की स्पेसिंग, एटम्स के प्लेन के बीच की स्पेसिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में नहीं होगी, तो एक्सरेज डिफ्रैक्ट नहीं होंगे क्रिस्टल से. एक्सरेज डिफ्रैक्ट क्यों होते हैं क्रिस्टल से? क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर के एटम्स या एटॉमिक प्लेन्स की स्पेसिंग वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, इसलिए. सो इफ यू वांट टू टेस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, okay, the property of diffraction of X-rays, then you have to incident the X-rays on atomic planes or the crystals. तो कैसे? देखो एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, जस्ट लुक एट द एनिमेशन. ओके, सो एनिमेशन दिखाने के पहले एक चीज बता रहा हूं, वो तुमने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो दिस इज द वेव, वन वेव, दिस इज वेव नंबर 1 एंड दिस इज द वेव नंबर 2. दोनों को ऐड कर रहे हो.
कंस्ट्रक्टिव कब बोलेंगे? दिस इज द क्रेस्ट ऑफ वेव एंड दिस इज ट्रफ। जो उठा हुआ पहाड़ जैसा पार्ट है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो उल्टा पहाड़ है, ओके, ऑपोजिट हिल, उसको क्या बोलेंगे? ट्रफ। सो दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। दिस इज द वेव नंबर 1 एंड दिस इज द वेव नंबर 2, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। इन दोनों का अगर सुपर पोजिशन करूं, इन दोनों, अगर ये दोनों वेव्स इंटरफर हो रहे हैं, इफ दीज टू वेव्स आर गोइंग टू बी इंटरफर with each other, then the crest of one wave should be overlapped with the crest of other wave. ये इसका पहाड़ वाला पोर्शन इसके साथ ओवरलैप होना चाहिए, उल्टे पहाड़ वाला पोर्शन इसके साथ ओवरलैप होना चाहिए, क्रेस्ट का क्रेस्ट के साथ, ट्रफ के साथ, तब हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर उल्टा होता है तो वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है? ये देखो, वेव नंबर 1 ऐसी आ रही है, दिस इज द वेव नंबर 1। अब वेव नंबर 2 भी उसके साथ अभी इंटरफर करने आ रही है। देखो वेव नंबर 2 धीरे 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 आ रही है। तो क्या हो गया? फिर से मैं एक बार एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये वेव नंबर 2 आई और इसका क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल गया, ट्रफ और ट्रफ मिल गया, तो दोनों वेव्स एक साथ मिलके अभी एक वेव की तरह ही लग रही है, बिकॉज क्रेस्ट ऑफ वन वेव, फिर से एक बार एनिमेशन, क्रेस्ट ऑफ, ये देखो फर्स्ट वेव, दिस द क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज इंटरफर विद द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव इज इंटर। तो इस तरीके से एक ही वेव दिख रही है। तो जब इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं एक पर्टिकुलर रेगुलर मैनर में, ओके। अगर उल्टा हो गया, क्रेस्ट के साथ ट्रफ आ गया और ट्रफ के साथ क्रेस्ट आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव है, बराबर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ ओवरलैप होगा, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के साथ ओवरलैप हो गया। एनिमेशन में जो दिखाया मैंने, ये देखो इस तरीके से। सो दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ओवरलैप विथ क्रेस्ट ऑफ अदर वेव and trough of one wave is overlapping with the trough of other wave, then this is called constructive interference. If the constructive interference takes place between the waves, then the path difference between the waves should be the integral multiple of lambda. ये पढ़े थे तुमने। If suppose in phase means constructive interference, ये waves phase में है मतलब constructive interference है, तो path difference should be integral multiple of lambda. N is integer, 1 2 3 4 order of reflection. Lambda is what? Wavelength of wave. Okay, कोई भी wavelength, wave की wavelength. So if suppose there is a constructive interference, it means that path difference should be equal to integral multiple of lambda. N is what? Integer, 1 2 3 and lambda is wavelength. Okay, so this is what? This is diffraction or this is constructive interference. Okay, so I am talking about, okay, I was talking about the diffraction of x-rays by crystal. अब मैं एनिमेशन दिखाऊंगा क्रिस्टल के साथ x-rays कैसे डिफ्रैक्ट होते हैं। This is the crystal having a plane in which atoms are regularly arranged. These green circles are atoms और ये plane है, this is one atomic plane। और ये atomic plane किस में होते हैं? क्रिस्टल्स के अंदर। क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ओके, सो दिस इज वन एटॉमिक प्लेन इन विच द एटम्स or ions or molecules, I am considering they are atoms. Okay, so atoms are arranged in regular pattern or regular manner in particular plane. This is, suppose this is first plane, this is the second plane, the atoms are arranged in a particular regular manner in particular order in second plane, and this is the third plane. Okay, so crystal में क्या होता है? ऐसे atoms regularly arrange होते हैं। ये क्या है? atomic planes। ये एक एटॉमिक प्लेन हो गया, ये दूसरा एटॉमिक प्लेन हो गया, ये तीसरा एटॉमिक प्लेन हो गया। ओके, सो दीज आर द एटॉमिक प्लेन्स। इफ सपोज एक्स-रेज आर इंसिडेंट ऑन द एटॉमिक प्लेन, सो दिस इज द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्स-रे, इट इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट एटॉमिक प्लेन ऑफ दिस एटम। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट बीम ऑफ एक्स-रे एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड एटॉमिक प्लेन इन दिस पर्टिकुलर एटम। ओके, तो एक्सरे जब एटॉमिक प्लेन पे पड़ती है, ठीक है, और एटॉमिक प्लेन, ये दो प्लेन के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ये जो दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है, ओके, द गैप बिटवीन दिस टू प्लेन शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की जितनी वेवलेंथ है उसके ऑर्डर में होना चाहिए। अगर एक्सरे की वेवलेंथ 0.9 एंगस्ट्रॉन्ग है तो स्पेसिंग भी 0.9 एंगस्ट्रॉन्ग के करीब होना चाहिए। ओके,
So these X-rays are incident on the atoms of particular plane. तो क्या होता है कि जब एक्सरे एटम के साथ इंसिडेंट करते तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एक्सरे क्या है, फोटोन. एक्सरे इज जस्ट लाइक अ फोटोन. व्हाई? बिकॉज एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and electromagnetic radiation means light. Okay, so X-ray we can call as X-ray as photon. Okay, we can call as X-rays as a photon. Okay, so X-rays are consist of photon. Okay, और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. एक्सरे किससे बनता है, फोटोन से. क्यों? क्योंकि एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट. लाइट किससे बनता है, फोटोन से. तो इसलिए एक्सरे को हम फोटोन भी बोलते हैं. So X-rays are nothing but photons. Okay. So X-rays when incident on the atoms, atoms के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स. तो ये फोटोन क्या करता है, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, तो उसके कारण क्या होता है, फोटोन का डायरेक्शन बदल जाता है. सो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. ओके, सो जैसे ही एक्सरेज एटम पे पड़ी, एक्सरेज का डायरेक्शन बदल गया, डेविएट हो गई, बेंड हो गई ये पर्टिकुलर ऑर्डर में. सो दीज आर द डिफ्रैक्टेड एक्सरेज. These are the incident X-rays and these are the diffracted. Why these X-rays are diffracted? Okay, because atom consists of electron. तो एटम का इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है. ओके, और ये फोटोन पड़ रहा है उस पे, तो फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन का पाथ बदल देगा. ठीक है, जैसे ही फोटोन एटम पे पड़ा, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन. फोटोन मतलब एक्सरेज. जैसे एक्सरेज एटम्स पे पड़े, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सरेज मतलब फोटोन और एटम इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ और फोटोन का पाथ बदल गया, मतलब एक्सरे का पाथ चेंज हो गया, एक्सरे का पाथ डेविएट हो गया. तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल. और क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं. जब एक्सरेज एटम्स पे पड़ते हैं तो एटम क्या करता है, एक्सरे को डिफ्रैक्ट करता है. एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल्स. Okay, why it is diffracted? Because X-rays consist of photon and atom consist of electron. There is collision between the photon and electron takes place. Because of that, the path of photon will change. But the condition of that diffraction of X-rays by the crystal is that the gap between these two planes, gap between any of the two planes should be equal to the wavelength of X-ray. तभी एटॉमिक डिफ्रैक्शन होगा, तभी क्रिस्टल डिफ्रैक्शन देंगे. और क्रिस्टल्स, कोई भी क्रिस्टल पकड़ लो तुम, NaCl पकड़ लो, KCl पकड़ो, कोई भी मेटल के क्रिस्टल्स पकड़ो, सारे क्रिस्टल में जो एटम के बीच की स्पेसिंग होते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में होती है, 10⁻⁻10 मीटर. और एक्सरे की वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में होती है. इसलिए X-rays are used to diffracted by the crystals. Hence, X-rays are used to study the crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी के लिए एक्सरे का यूज करते हैं. और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं एक्सरे की, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज करते हैं. इसलिए क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी के लिए एक्सरेज यूज करते हैं. बिकॉज एक्सरेज आर गिविंग डिफ्रैक्शन फिनोमिना बाय द क्रिस्टल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन स्टडी, वी कैन एनालाइज, वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिस्टल. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे, दैट इज डिफ्रैक्शन, विच इज यूज टू एनालाइज द crystals, analyze the crystalline solids, analyze the crystalline materials. Okay, तो ये तो पता चल गया कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे क्रिस्टल से कैसा होता है, डिफ्रैक्शन होता है कैसे ये पता. अब डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल को स्टडी किया WH ब्रैग और WL ब्रैग ने. WH ब्रैग था फादर और WL ब्रैग था उसका बेटा. बाप बेटे ने मिलके डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को स्टडी किया, क्रिस्टल्स को स्टडी किया और एक लॉ डिराइव किया, उसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स इक्वेशन. एंड दैट ब्रैग्स लॉज is very important to study the crystalline material, to identify the crystalline material, to analyze the crystalline solids. So बाप और बेटे ने मिलके WH ब्रैग और WL ब्रैग, ओके, विलियम्स H ब्रैग और विलियम्स L ब्रैग दोनों ने ये डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल को स्टडी किया और ब्रैग्स लॉ डिराइव किया. ओके, सो ये तो वेव्स है. देखो ये तो मैंने अभी एक लाइन दी दिया, लाइन ड्रॉ किया था ना ऐसी इंसिडेंट एक्सरे, उसको ऐसे वेव के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते इस तरीके से. ओके, दीज आर द इंसिडेंट वेव एक्सरेज एंड दीज आर द
डिफ्रैक्टेड एक्सरेज। ओके, सो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ब्रैग्स लॉ पढ़ाऊंगा। सो ब्रैग्स लॉ वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय W.H. Bragg एंड W.L. Bragg बाय 1913। 1913 में W.H. Bragg और W.L. Bragg ने ब्रैग्स लॉ को डिस्कवर किया और इन्वेस्टिगेट किया। W.H. Bragg फादर, W.L. Bragg सन, दोनों ने मिलकर 1930 में लॉ दिया। इसको नोबेल प्राइज भी मिला इस लॉ को, बिकॉज दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो ये लॉ क्या था वो आज हम डिराइव करेंगे। वेरी इजी डेरिवेशन, सिर्फ 2 स्लाइड का डेरिवेशन है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये तुमने BSCME पे पढ़ा होगा। सो look at this, these are the atomic planes or these are the this is the crystal consists of atomic planes and atoms are arranged in the regular manner. So these are the atoms arranged in the plane in regular manner. Okay, these are the atoms. This is first plane, this is second plane, this is third plane, this is fourth plane. Okay, atoms are arranged in the regular manner. Okay, so suppose the interplanar spacing, space between the plane, that is called interplanar spacing, that is D. Suppose D is the interplanar spacing or D is the gap between these two planes. D is the interplanar spacing between two planes. So ये भी D है, ये भी D है। सारे एटम, 2 एडजेसेंट प्लेन के बीच के एटम्स की जो डिस्टेंस रहेगी, 2 एडजेसेंट प्लेन के एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग और D रहेगा। तो हर 2 प्लेन की स्पेसिंग कितनी रहेगी? D। और डिफ्रैक्शन कब होगा? जब ये D की वैल्यू शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के ऑर्डर में होना चाहिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तब जाके डिफ्रैक्शन होगा। और वो होती है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड पकड़ लो, NaCl, KCl, कोई भी मेटल पकड़ लो क्रिस्टलाइन, उसमें जो एटम के बीच की और इंटरप्लेन्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो एक्सरे के वेवलेंथ के बराबर होती है। इसलिए हम एक्सरेस का यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल के अंदर क्या है चीजें देखने के लिए, अंदर एनालिसिस करने के लिए, मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। सो दीज आर द एटॉमिक प्लेन्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स। ओके, सपोज लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है। ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट एक्सरे, OA। OA इज द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे। ये A एटम पे स्ट्राइक कर रही है। A एटम मतलब फर्स्ट प्लेन, द एटम ऑफ फर्स्ट प्लेन। सो OA इज इंसिडेंट बीम ऑन द एटम ऑफ फर्स्ट प्लेन। और ये क्या? डिफ्रैक्ट होगी, ये डिफ्रैक्टेड बीम। ये इंसिडेंट बीम, ये डिफ्रैक्टेड बीम। ये पहले प्लेन से, फर्स्ट प्लेन से ये इंसिडेंट हो रही है। ओके, दिस बीम इज डिफ्रैक्टेड बाय द फर्स्ट प्लेन, एटम ऑफ फर्स्ट प्लेन। नाउ अगेन दिस इज इंसिडेंट रेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रेस और डिफ्रैक्टेड रेस। ओके, दिस इज डिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेस। Okay, second, this is incident rays, O dash, this one, and this is diffracted. Okay, so this is first ray is incident on first plane and diffracted by the first plane. This is incident on second plane, this is second plane and diffracted by the second plane, atoms of the second plane, and D is the distance between 2 planes. Okay, now what we will do, this is the, suppose this is the point B and this is atom A and this is B. Okay, so OA and O dash B, these are the incident X-rays. This is incident on first plane and this is incident on second plane, and these are the diffracted or reflected X-rays. These two are diffracted or reflected X-rays. Okay, because of these atom और atomic planes. Atom के अंदर इलेक्ट्रॉन के वजह से फोटॉन्स क्या हो गए? डिफ्रैक्ट हो गए, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गए। तो ये 2 इंसिडेंट रेस और 2 डिफ्रैक्टेड रेस। अब ये क्या कर रहे हैं कि एंगल थीटा बना रहे हैं। Okay, this is the according to the law of reflection, angle of incident equal to angle of reflection. So ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, I is equal to R. Okay, so ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। Okay, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब now I am just drawing a perpendicular from point A to this incident rays and point A to this डिफ्रैक्टेड रेस। कैसे? ये देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से। ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू दिस इंसिडेंट, सेकेंड इंसिडेंट रेस एट अ पॉइंट P. सो AP इज द परपेंडिकुलर टू O dash B. Again I am drawing second perpendicular from point A to diffracted, second diffracted ray or second reflected ray here
दिस आई कैन कॉल एज ए क्यू। ओके, सो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? वाई आई हैव ड्रॉन दिस टू परपेंडिकुलर्स। ए से मैंने निकाला परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे पी पे, इस इंसिडेंट सेकेंड वाले इंसिडेंट रेस पे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे एपी इज द परपेंडिकुलर ऑन सेकेंड इंसिडेंट रे, क्योंकि फर्स्ट इंसिडेंट रे ये है, ये सेकेंड इंसिडेंट रे, और सेकेंड यहां से सेकेंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट ए से क्यू, ये सेकेंड डिफ्रैक्टेड रे पे ए क्यू, ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। अब ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? देखो ये देखो, ये वाली रेस जो है ओ ए और ये जो रे है ओ डैश बी, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। ओ ए क्या है? ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ ओ डैश बी, क्योंकि ये जो ओ डैश बी वाली रे है वो जो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, सेकेंड प्लेन तक पहुंच रही है, और ये जो ओ ए वाली रे है वो फर्स्ट प्लेन से डिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरी रे अंदर तक जा रही है। अगर मैं तीसरी रे ड्रॉ करता तो और अंदर तक जाती, मतलब ओ ए ओ डैश बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू ओ ए। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे यहां से इस ए पॉइंट से यहां तक फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे की बात करूंगा, बी वाली डिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे यहां से, तो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ने भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब फर्स्ट सेकेंड इंसिडेंट रे और सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस मोर देन द फर्स्ट इंसिडेंट एंड फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। क्यों मोर? क्योंकि पहली जो रे है ऊपर से ही निकल गई पहले ही प्लेन से, लेकिन दूसरी रे अंदर तक गई तो इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये जो रे है, ये इंसिडेंट रे ओ ए और ओ डैश बी में कितना डिफरेंस, कितना डिस्टेंस का डिफरेंस था? ये वाला पीबी। सो इसने क्या किया, ओ डैश बी ने ये पीबी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि देखो ओ ए और ओ डैश पी यहां तक तो लेंथ इक्वल है दोनों की, ओ ए और ओ डैश पी यहां तक लेंथ इक्वल है, लेकिन पी से बी तक लेंथ ज्यादा ट्रैवल किया किसने? सेकेंड इंसिडेंट रे ने। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू फर्स्ट इंसिडेंट रे, दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो इंसिडेंट रेज में पाथ डिफरेंस कितना है? पीबी। अब रिफ्लेक्टेड रेस की बात करते हैं या डिफ्रैक्टेड रेस की बात करते हैं, तो देखो डिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये फर्स्ट डिफ्रैक्टेड रेस। अब सेकेंड डिफ्रैक्टेड रेस की बात करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सो ए से ये पॉइंट और क्यू से ये पॉइंट, ये लेंथ इक्वल है। ए से इस पॉइंट तक, मेरा माउस एरो देखो, ए से इस पॉइंट तक और क्यू से इस पॉइंट तक लेंथ सेम है, बट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? ये नीचे वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला बी क्यू। So BQ is the extra distance traveled by the second reflected ray as compared to first reflected ray, and PB is the extra distance traveled by the second incident ray, that is O dash B, as compared to OA। तो समझ में आया? तो दोनों का अगर पाथ डिफरेंस मैं कैलकुलेट करता हूं तो दोनों मिला के पाथ डिफरेंस कितना आता है? PB प्लस BQ। सो PB प्लस बी क्यू, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने? सेकेंड इंसिडेंट रे और सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ने। ठीक है, और अभी एंगल की बात करते हैं। यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। कैसे? अब ये तुम बोलोगे कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कैसे थीटा हुआ भाई? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, ये एंगल थीटा क्यों हुआ? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला सेम डायग्राम मैं यहां पे बता रहा हूं, सेम डायग्राम। ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना है? ओ ए पी, ये टोटल एंगल है 90। देखो परपेंडिकुलर टाइप है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है 90 है, तो ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, राइट। ये थीटा है, तो ये जो बचा वाला एंगल है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है ये वाला, देखो ओ ए पी 90 है, सो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल एंगल देखो ई ए बी, ई ए बी कितना है? फिर से 90 है, ये देखो ई ए बी फिर से 90 है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर से क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल ई
PAB is 90 is 90 and out of which EAP is 90 minus theta. So the remaining angle of PAB is theta. सेम तरीके से ये एंगल भी इससे निकाल सकते हैं, ये थीटा है तो और ये 90 है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जिस तरीके से लेफ्ट में ये थीटा आया वैसे ही ये एंगल भी थीटा आएगा, बिकॉज दिस एंगल इज 90, remaining angle is 90 minus theta because total angle is 90 minus theta and this total angle is 90, so one of which is 90 minus theta, so again this angle is theta, so this angle is theta and this also as this in the same way this angle is also theta, so PAB is also theta and QAB is also theta if this angle is theta. okay, तो ये तो हो गया थीटा एंगल की बात, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट डिफरेंस की बात मैंने किया। सो इंसिडेंट जो सेकेंड इंसिडेंट रे है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया PB, और सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया PQ। अब समझ में आया कि हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है, व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर टू चेक द पाथ डिफरेंस, टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंसिडेंट बीम्स एंड रिफ्लेक्टेड बीम्स इज PB प्लस BQ। कैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो एक रे है AB, ये लाइन है AB और एक लाइन है EF। ओके, सो AB यहां से डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू P। ठीक है, लेकिन देखो EF लाइन बड़ी है, AB लाइन छोटी है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसा, सो AB की लेंथ OP की लेंथ के इक्वल है, बट EF जो लाइन है EF ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, EO ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, या PF ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइन AB एंड लाइन EF इज OE प्लस PF। क्यों, ये PF एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। देखो यहां पे फ्रॉम पॉइंट A टू B इतना ही लेंथ है ना, और पॉइंट फ्रॉम पॉइंट O टू P सेम लेंथ है, तो ये दोनों, ये यहां से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, so length of AB is equal to length of OP, but what is the extra distance traveled by the line EF, because there are two lines, AB line and EF line। तो EF line ने extra distance कितना travel किया, EO ये extra part है, PF ये extra part है लाइन EF का, तो extra part मतलब extra distance मतलब that is part difference। so part difference between these two lines is OE plus PF। ओके, और इतना जो बीच वाला पोर्शन है वो तो सेम है। ओके, तो ये है पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे इतनी लेंथ की है, यहां से यहां तक लेंथ इक्वल है, फ्रॉम पॉइंट A टू P ये वाली लेंथ O' और OA लेंथ इक्वल है, बट एक्स्ट्रा लेंथ ट्रैवल किया PB। उसी तरीके से A से इस पॉइंट की और Q से इस पॉइंट की लेंथ सेम है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया रिफ्लेक्टेड और डिफ्रेक्टेड रेज ने BQ। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज विल बी PB प्लस BQ। अगर पार्ट डिफरेंस समझ में आ गया तो हम इजीली चीजें कर सकते हैं। सो ब्रैग लॉ डिराइव करने के लिए फ्रॉम द फिगर, पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे OA एंड रे O' B रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेज इज गिवन बाय PB प्लस BQ इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये n लैम्डा क्यों लिया, बिकॉज n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये दोनों वेव्स हो रही है, ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक ही फेज में है। ओके, गड़बड़ नहीं है, इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, इसका ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप हो रहा है। तो OA ये जो इंसिडेंट बीम्स और रिफ्लेक्टेड बीम्स दे आर इन फेज। सो इफ दे आर इन फेज so their part difference should be equal to the integral multiple of lambda। तो पार्ट डिफरेंस कितना है इन दोनों रेस के बीच में, PB प्लस BQ, और पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो PB प्लस BQ इज इक्वल टू n लैम्डा एंड n लैम्डा इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। अब PB की वैल्यू निकालेंगे और BQ की वैल्यू निकालेंगे। अब PB और BQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बता रहा हूं, फिगर में देखो PB और ये साइन थीटा और ये एंगल 90, इस ट्रायंगल में देखो, सी इन ट्रायंगल APB, ये APB ट्रायंगल में देखो थीटा यहां पर है और 90 डिग्री। अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा की वैल्यू लेता हूं APB इन ट्रायंगल APB, साइन थीटा मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी है, AB, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल APB इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, this is the angle theta, so what will be the sin theta, sin theta means opposite, theta के opposite side कौन सा है, PB,
अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है, ए बी। सो साइन थीटा इज नथिंग बट पी बी अपॉन ए बी, और ए बी का लेंथ कितना है, डी। सो साइन थीटा इज नथिंग बट पी बी अपॉन डी। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में देखो ए बी क्यू, इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा मींस ऑपोजिट साइड बी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। सो साइन थीटा इन अदर ट्रायंगल ए बी क्यू इज नथिंग बट बी क्यू अपॉन ए बी। सो बी क्यू अपॉन डी, ए बी का लेंथ कितना है, डी। सो इन ट्रायंगल ए पी बी साइन थीटा विल बी पी बी अपॉन डी, मतलब पी बी अपॉन ए बी। इन ट्रायंगल ए बी क्यू sin theta is nothing but bq upon d means bq upon ab. So very simple geometry. Okay, very simple geometry. pb और bq निकालना है तो, और n क्या है, इंटीजर है 1 2 3. So in triangle apb sin theta is nothing but pb upon ab. अभी बताइए opposite sides upon hypotenuse. Opposite side क्या है, pb. hypotenuse का साइड मतलब ab की लेंथ कितनी है, d. So in triangle APB sin theta is equal to PB upon D, और PB की वैल्यू निकालना है तो D उधर चला जाएगा तो D sin theta. So PB is nothing but D sin theta. This is the equation number 2. Similarly in triangle AQB sin theta क्या है, BQ upon AB. फिर से दिखा रहा हूं देखो, in triangle ABQ और AQB sin theta, this is sin theta, opposite upon hypotenuse. Opposite side कौन सा है, BQ. hypotenuse क्या है, AB. So BQ upon AB means BQ upon D. Okay. So secondly, just see that in triangle AQB sin theta is equal to BQ upon AB, and what is BQ? BQ हमको निकालना है, BQ. What is AB? D. So in this equation BQ is nothing but D sin theta. D को उधर लेके जाऊंगा. So BQ is nothing but D sin theta. This is the equation number 3. So PB is D sin theta. This is the equation number 2. And BQ is D sin theta. तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, PB प्लस BQ. ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. PB is D sin theta, BQ is D sin theta. So put the values of PB and BQ from equation number 2 to 2 and 3 to equation number 1. So I am putting the value of PB D sin theta and BQ D sin theta to the equation number 1, and after putting the values of PB and BQ in equation number 1 we'll get D sin theta plus D sin theta. PB की वैल्यू कितनी है, D sin theta. BQ की वैल्यू कितनी है, D sin theta. So D sin theta plus D sin theta is equal to n lambda. n क्या है, इंटीजर, lambda क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. So D sin theta and D sin theta, 1 plus 1 2D sin theta. So we will get 2D sin theta is n is equal to n lambda, and this is the Bragg's law. This is the famous equation of Bragg's law. This is the Bragg's law. Okay, so this is the famous equation. तो ये इक्वेशन पे नोबेल प्राइज मिला था. 2D sin theta is equal to n lambda, और इस इक्वेशन के भरोसे पे तुम किसी भी क्रिस्टल और किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, d is the interplanar spacing between the planes, n is the order of reflection. 1 रहा तो फर्स्ट प्लेन से हुआ, 2 रहा तो सेकंड प्लेन से हुआ, 3 रहा तो थर्ड प्लेन से हुआ. n is equal to 1 means first order of reflection, n is equal to 2 means second order of reflection, n is equal to 3 means third order of reflection, and lambda is nothing but the wavelength of X-ray. If you know the lambda order and if you know the angle of diffraction, then d can be easily calculated. Or it means that using this equation you can easily determine the interplanar spacing between the planes. d easily निकाल सकते हो. तुमको wavelength of X-ray फिक्स होती है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है, थीटा भी पता है तुमको, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. तो d कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. इट मींस दैट interplanar spacing between the crystal, between the atoms or between the atomic planes can be easily calculated with this equation. इसका मतलब हर एक मटेरियल के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग अलग अलग होगी, तो उस इंटरप्लेनर स्पेसिंग से तुम प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हो. प्लेन आइडेंटिफाई किया तो तुम क्रिस्टल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्रिस्टल है, क्योंकि हर क्रिस्टल में प्लेन्स अलग अलग होते हैं.
तो तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस इक्वेशन का बहुत बड़ा यूज है। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 2d sin theta is equal to n lambda, and using that equation you can easily calculate the interplanar distance between the planes. If you know the theta and n lambda, you can easily calculate the interplanar spacing between the plane, and interplanar spacing for each crystal is different, and using that value of interplanar spacing you can easily identify the crystal, you can easily identify the crystalline solid, you can easily identify the crystalline compound. This is very important Bragg's law, and today I have shown you how to derive the Bragg's law, as well as I have started the lecture with the diffraction, and I have tried to explain you the what is the diffraction and what is the difference between the diffraction and scattering. Okay, so today this is all about the diffraction and Bragg's law. If you have any question, you can ask me.